دنیا کو اب ایک اور ہٹلر کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے نیلسن منڈیلا، مارٹن اور گاندھی جی جیسے افراد کی۔ آج ہمارا ملک تقریباً 33 لاکھ ہندوستانیوں کی میزبانی کر رہا ہے، جو افراد ایک سال میں $17 ملین اپنے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو آداب، یہ کہا ہند القاسمی نے، جو یو اے ای کی شہزادی ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کا خیال ہے کہ ان کے تعلقات GCC یعنی گلف کنٹری سے کافی بہتر ہیں، کیونکہ گزشتہ میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یو اے ای اور سعودی عرب کی جانب سے اعلیٰ ترین اعزازات سے انہیں نوازا جا چکا ہے۔ لیکن RSS کے کچھ افراد اور سنگھی ٹولے نے ہندوستان کے ان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ جیسے ہی کرونا وائرس کا آغاز ہندوستان میں ہوا تو بھارتیہ میڈیا سینٹرز اور چینلز کے دوارا یہ کوشش کی گئی کہ تبلیغی جماعت ہی اس کو پھیلانے کے لیے قصوروار ہیں، یہ کہا گیا اور یہی چیز منظر عام پر لائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی یو اے ای میں جو افراد جو سنگھی سوچ رکھتے ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے ٹویٹر پر ایک سلسلہ وار اسلامک نفرت اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز ٹویٹس پوسٹ کرنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی اس کا آغاز ہوا تو گلف میں موجود بہت ساری با اثر عربک شخصیات نے اس وار میں اپنے کو شامل کیا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی سارے سیگمنٹس اور ڈیفرنٹ طریقے کے لوگ، جن میں وکیل بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں اور کئی سارے بزنس مین اور رائل فیملی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے شہزادے اور شہزادیاں شامل ہیں، انہوں نے ہندوستان کے خلاف، ہندوستان میں جو ہونے والے ظلم ہے جو بالخصوص مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے اور اقلیتوں پر کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا اور ایک ٹویٹر وار کا آغاز ہوا۔ دراصل ہوا یوں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک اعلان کیا اور اس میں کہا کہ کرونا وائرس کے پھیلنے کے سبب کوئی مذہب نہیں، اور یہاں ہندوستان میں ہر دن یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ تبلیغی جماعت ہی اس وائرس کے پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ اسی ڈیوریشن میں ہوا یہ کہ تیجسوی سوریا جو بنگلور سے MP ہیں، ان کا ایک پرانا ٹویٹ تھا جس میں عرب خواتین کے لیے نازیبا کلمات کہے گئے تھے، وہ وائرل ہونا شروع ہوا۔ جیسے ہی وہ وائرل ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور GCC کنٹریز میں ایک حرکت دیکھنے میں آئی۔ ہوا یوں کہ اس درمیان میں 57 کنٹریز کی جو یونین یا آرگنائزیشن اسلامک ممالک میں قائم ہے، IOC، اس نے مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں ہونے والے مظالم کی روک تھام کے لیے ایک پریس ریلیز کی، اور پھر یو اے ای میں فی الحال موجود سونو نگم کے بارے میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ فی الوقت وہ دبئی میں ہے، اور ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں اذان کے خلاف میں ایک متنازعہ بیان دیا تھا اور وہ کافی وائرل ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی یہ وائرل ہوا تو سونو نگم نے اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو ہی کلوز کر دیا اور پھر رمضان کے اس مبارک موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہوئے مبارکبادی پیش کی۔ دوستو، بہت سارے عرب وکلاء، ماہرین اور ہیومن رائٹس کے افراد نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں ہونے والے مسلمانوں کے خلاف مظالم، ظلم و زیادتی کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر بہت سارے فورمز میں، UN میں اور بالخصوص انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کو پریزنٹ کریں گے۔ ہوا یوں کہ ایک کویتی ماہر، کویتی لیگل ایکسپرٹ عبد الرحمن النصار نے لکھا کہ ہندوستان میں کرونا وائرس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں نے ہی اس وبا کو عام کیا ہے، گو کہ کویت میں فی الوقت 1958 کورونا کے مریض ہیں، جن میں سے اکثر یعنی کہ 924 افراد انڈین ہیں۔ اس کے باوجود بھی کویت ان کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے اور ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے، بلکہ ان کا بھی ٹریٹمنٹ ویسے ہی کر رہا ہے جیسے ایک عام آدمی کا کر رہا ہے۔ اور پھر ہوا یوں کہ ماہر قانون مجبل الشریکہ
जो वहाँ पे वज़ारत शुऊन वल औक़ाफ़ के एक माहिर और एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं और एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत कर रहे हैं और एक इस्लामिक फ़ोबिया या इस्लामोफ़ोबिया फैला रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम सख्त एक्शन लेंगे। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसे तमाम एविडेंस को हम ही पोस्ट कर दें जहाँ पर जुल्म किया गया और इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई गई। तो लिहाजा देखना ही क्या था कि बहुत सारे अफराद ने कंटिन्यूसली पेपर कटिंग्स, वीडियोस, ऑडियोस और बहुत सारे ऐसे लिंक्स फॉरवर्ड किए जिसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत शामिल थी। और साथ ही साथ जो मुत्तहिदा अरब इमारात की जो शहज़ादी हैं हिंद अल क़ासमी, वो भी हिंदुस्तानी मीडिया से मुखातब हुई। निधि रज़दान जो NDTV के काफ़ी मशहूर व मारूफ एंकर हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। इसमें उन्होंने यही कहा कि हिंदुस्तान के तकरीबन UAE के साथ काफ़ी क़दीम ताल्लुक़ात हैं, 50-60 साल क़दीम ताल्लुक़ात हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग यहाँ के एटमॉस्फेयर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा और इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम हर दिन ये देख रहे हैं कि मुसलसल ये शहज़ादी इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट में जो भी आवाज़ उठ रही है, इसके ख़िलाफ़ ये मुसलसल एक्टिव हैं और इसके अगेंस्ट में एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इन्होंने एक अरबिक में पोस्ट किया जो काफ़ी अहम हैसियत रखता है और काफ़ी अहम है, जिसको मैं डायरेक्टली आपके सामने यूं कतूं जैसे उन्होंने लिखा है उसको पढ़ के सुनाऊंगा। अना आकिफ माल मुस्लिमीन अल हिंदिल मुस्तहदीन अल्लदीना यमनऊन माल अक्ल लहम तय्यब वल लुहूम बिअनवाइहा व हत्ता बाअतिल फाकिहति वल खदरवात अल यौम अअलन अदहुम मिन मजलिस अल हकम अल हिंद बिअदम अश-शराइ मिनहुम लिअन्न बिदाअतुहुम मलमूसा बिलकुरूना मुलव्वसा बिलकुरूना अल-उन्सुरिय्या वल क़त्ल वत तहरीश व मनअहुम मिन अल इलाज औ हत्ता दुखूल अल मुस्तशफ़यात लिल इलाज लिअन्नहुम मुस्लिमीन। यानी कि मैं भारत में उन मज़लूम मुसलमानों के साथ खड़ी हूँ जिन्हें परिंदों और दीगर किस्म के गोश्त को भी खाने से रोका जा रहा है, हत्ता कि ये हद हो चुकी है कि एक MLA ने मुसलमानों से सब्जियां खरीदने पर भी रोक लगा दी है और उसका ऐलान कर दिया है। नस्ल परस्ती, क़त्ल व गारतगिरी की हद यह है कि मुसलमानों को इलाज के लिए हॉस्पिटल्स में दाखिल होने से भी रोका जा रहा है। और इस सिलसिले में एक न्यूज़ अल जज़ीरा पर आज ही पब्लिश की गई जिसका उन्वान था डू नॉट बाय फ्रॉम मुस्लिम्स, BJP लीडर्स इन इंडिया कॉल्स फॉर बाइकॉट। दोस्तों, वज़ीर आज़म और गल्फ में मौजूद कई सारे एम्बेसडर्स ने भाईचारगी और एकता के लिए पैगामात इरसाल किए हैं और इसी दौरान माइनॉरिटी मिनिस्टर ने भी कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए एक जन्नत है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इसी ड्यूरेशन में योगी आदित्यनाथ ने तबलीगी जमात के कई सारे अफराद को जेल की राह दिखा दी। दोस्तों, दिन ब दिन इस किस्म की जो जहर अफशानी हिंदुस्तान में देखी जा रही है, इसका डायरेक्टली असर अभी फिल वक्त बाज़ मुबस्सिरीन के लिहाज से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल है कि जो BR शेट्टी हैं, जो हिंदुस्तान में RSS और बिलखुसूस BJP के काफ़ी क्लोज समझे जाते थे और शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो जो BR शेट्टी से नावाकिफ़ हो, और उनका जो हॉस्पिटल सिस्टम NMC हॉस्पिटल्स जो UAE में पब्लिश हैं और इसी तरीके से UAE एक्सचेंज जो काफ़ी मशहूर है, तकरीबन हर कोई उससे वाकिफ़ है, ये इसी के ओनर है और उनके तकरीबन तमाम जो अकाउंट्स हैं वो फिल वक्त UAE के तकरीबन सभी बैंकों में क्लोज़ कर दिए जा चुके हैं और वो फिल वक्त फ्रीज़ हैं और उन पर ताहाल पाबंदी है और उसका एक नोटिस लिया जा रहा है और उसकी छानबीन जारी है। बतलाया ये जा रहा है कि ये भी यानी कि BR शेट्टी भी इस्लामिक फोबिया के शिकार हो चुके हैं। अजीज़ दोस्तों, जब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान और UAE के जो ताल्लुकात हैं और GCC यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात हैं, जो बिज़नेस रिलेशंस है, ईयरली तकरीबन $162 बिलियन की एक ट्रेड हमारे दरमियान में होती है और हिंदुस्तान एक 5वां ऐसा बेहतरीन देश है
जो गल्फ़ कंट्रीज़ से अपने तिजारती ताल्लुक़ात कायम कर चुका है। और दोस्तों, ये ताल्लुक़ात आज और कल और 5 साल पुराने नहीं बल्कि सदियों पुराने, बल्कि तकरीबन 50-60 सालों पर इनका इन्हिसार है। इसी ट्विटर की ज़द में हिंदुस्तान के एक मशहूर व मारूफ सहाफ़ी और साथ ही साथ माइनॉरिटी चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम खान भी आ चुके हैं। उन्होंने कुवैत के कुछ अफराद का शुक्रिया अदा किया था, जिसकी वजह से उन पर आज एक FIR दर्ज की जा चुकी है। और इस सिलसिले में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर भी इस सिलसिले में खबर आ चुकी है। और ये भी देखा गया है कि UAE में भी आज 3 हिंदुस्तानियों के खिलाफ इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने के जुर्म में कार्रवाई की जा चुकी है, जिसकी एक न्यूज़ गल्फ़ न्यूज़ पोर्टल पर पब्लिश हो चुकी है। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो संघी परिवार और बहुत सारे जो RSS के लोग हैं, वहाँ पर एक लॉन्ग ड्यूरेशन से ये सरगर्मी या एक्टिविटी चला रहे थे, जिसमें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत शामिल थी। और वहीं से यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ से मुसलसल अब ये बात कही जा रही है कि RSS को बैन किया जाए और इस किस्म के खिलाफ और इस किस्म के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम ये देख रहे हैं कि कई सारे हैशटैग्स जो फिल वक्त वायरल हो रहे हैं और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें से 1-2-4 मैं आपके सामने रखूंगा। इस्लामोफोबिया इन इंडिया, बैन RSS, स्टॉप टारगेटिंग मुस्लिम्स, RSS किलिंग मुस्लिम्स, RSS टेररिस्ट, अरब एक्सपोजिंग RSS। इस तरीके से जो हैशटैग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। लिहाजा मैं मोदी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि अभी फिल वक्त बातों पर ही ना इक्तफा करें और ना ही ट्विटर पर इक्तफा करें। अपने जो हिंदुस्तानी भाई हैं जो इस किस्म के नफ़रत अंगेज़ लबो लहजे को इख्तियार किए हुए हैं और बिलखुसूस गल्फ़ कंट्रीज़ में रह कर इस किस्म के नफ़रत को फैला रहे हैं, इनको खामोश रहने के लिए और इनके खिलाफ एक एक्शन सख्त कार्रवाई करने के बारे में इंतबाह दें, ताकि हमारे जो 50 साल पुराने जो ताल्लुकात इन अरब कंट्रीज़ के साथ बेहतर हैं उनको अच्छे से अच्छे रख सकें और हमारे जो ताल्लुकात जो तिजारती ताल्लुकात हैं उसको बेहतर से बेहतर बना सकें। और हम उन लोगों के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई करें जो BJP से ताल्लुक़ रखते हैं और BJP के सरकर्दा लीडर्स में शुमार किए जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हिंदुस्तान में नफ़रत फैला रहे हैं, जिनमें प्रज्ञा ठाकुर हैं, कपिल मिश्रा है, योगी आदित्यनाथ हैं और इसी तरीके से अनुराग ठाकुर हैं। और साथ ही वो न्यूज़ चैनल्स भी और उसके एंकर्स भी जो इस किस्म की जहरीली गुफ्तगू फैला रहे हैं और हिंदुस्तानी माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त है कि हम भाईचारगी के साथ रहें हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैल रही है उसको रोकने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया साथियों, आदाब।